السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی مدد کا وقت۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ پاک کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرض تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ پاک تمہیں وہ ادا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھویا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلی بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو بہے خود نکالتا ہے۔ جب تم سجدے میں ہی کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی۔ وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم کون کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں روا دوا ہیں۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک فیاکن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ پاک تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ پاک تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ جو اللہ پاک کو چنتا ہے اللہ پاک اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش میں گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ پاک اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ پاک سے، وہ اللہ پاک کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں اللہ پاک پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے۔ اللہ پاک سے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ پاک کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں عطا نہیں کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پاک پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور صحیح
सही, फिर देखो जब अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम न करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिसे अल्लाह पाक ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राजी करने में इतना मसरूफ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो जिसकी रजा से ही तुम्हारी रजा जुड़ी है। तुम दुनिया के रूबरू मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हो और फिर ये दुनिया तुम्हें तोड़ देती है और फिर इन किरचियों को समेट कर तुम अल्लाह पाक के पास वापस आते हो। सब्र और बंदे की तड़प कभी जाया नहीं जाती और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती हैं वो उतनी ही ज्यादा रंग लाती हैं। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह न बनने देना, क्योंकि अल्लाह पाक कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता है और वो है उसका कुन। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तरकीब का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ न आए, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहां तुम आज हो वहां तक पहुंचने के लिए इस तकलीफ से गुजरना बहुत जरूरी था जिसे तुम सजा समझ रहे थे। क्योंकि बेसुकूनी के बाद अल्लाह पाक ऐसा सुकून देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। वो खामोशियां भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहार पसंद है। बंदे का जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है। और जब बंदा गिड़गिड़ाकर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। जानना चाहते हो कि अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगे अल्लाह पाक भी फिर तुमसे वैसे ही मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह पाक खास होगा उतना ही तुम उसके प्यारे होगे। जितना तुम अल्लाह पाक के करीब रहोगे उतना अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह पाक को हमारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबे का तवाफ करते हैं और एक फरिश्ता इतना बड़ा कि उसकी वारी कयामत तक फिर भी नहीं आएगी। जमीन वो आसमान की हर शय जिस जात की तारीफ में मगन रहती है, वो जात जो अलनूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह पाक है। उसे किसी की जरूरत नहीं क्योंकि वो बेनियाज है। वो जो तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले हुए है, वो जो तुम्हारे 1000 गुनाह करने के बावजूद भी तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखता है, वो जो दिन भर तुम्हारी नाफरमानी देखने के बावजूद भी सुबह फरिश्तों के हाथों रिज्क भेजता है। सोचो वो रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह पाक तो सबका है, लेकिन जब उसके आगे सजदा रेज होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह पाक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझे वो देख रहा है, सिर्फ मुझे वो सुन रहा है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह पाक है। और ऐसा तब होता है जब सिर्फ सजदा नहीं बल्कि सजदाए मोहब्बत अदा किया जाए। राहे जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते। और जो इस बात का यकीन नहीं रखते हैं अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते। हालात समझ से बाहर हो जाएं तो मुझे भी अकल से बाहर के होते हैं। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह पाक की जानिब से मदद का वक्त करीब आ गया है। बस तुम अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह पाक किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। अल्लाह पाक से मांगने के बाद नामुमकिन के गुमान नहीं रखते। मांगने के तरीके सिखा जो तुम्हें कब से सुन रहा है वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राब्ते नहीं रखता। कबूलियत के शहर भी तब वो बेहद नजदीक होते हैं जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है और यकीन के रास्तों से वापस नहीं पलटते, क्योंकि यह सीधा वहां जाते हैं जहां अल्लाह पाक का कुन सदाओं के इंतजार में होता है। दिल को जब अल्लाह पाक की रजा पर राजी कर लिया जाए तब अपनी रजा के खो जाने का खौफ नहीं रखते। तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है,
جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین اللہ پاک پر رکھتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ پاک تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہاری خوشی کے ہوں گے۔ اللہ پاک کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیجار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ پاک کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قادر ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے، اپنے بندے کے دکھ کا وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاق اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ پاک کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ پاک فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ تو تمہارے دل کے نہکھانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راج، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نواز آرزو، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو۔ بس میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل نہیں رکھتے، دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ پاک کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ پاک کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشت اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ پاک ہے نا، میرا اللہ پاک رحیم مالک حکیم، میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پاک پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کرو گے؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی، یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ پاک نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔
फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पाक पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है और यकीनन बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अल्लाह पाक की मदद दो ही तरीकों से मिल सकती है, पहला नमाज, दूसरा सब्र। नमाज में आपने अपने तमाम मसले अल्लाह पाक को बता के खुद को बोझ से आज़ाद करा लेना है, फिर अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करना है। उसे सब्र कहते हैं। जब आप इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो सबसे इंस्टेंट फायदा पता है क्या होता है कि आप पैनिक होने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह पाक बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से आपका काम संभाल लेगा। लोगों से मदद की उम्मीद, टेंशन, नाकामी का खौफ, धोखे का खौफ, उन सब परेशानियों से आप बच जाते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ अल्लाह पाक हो जाता है। और याद नहीं, यही मकसद नहीं था आपके और मेरे इस दुनिया में आने का। और सब्र और नमाज से मदद लिया करो। आप किस कदर परेशानियों और रंज आजमाइश से गुजर रही हैं, उन्हें ना कोई समझ सकता है, ना कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, ना कोई आपकी तकलीफ में बाकात आपका साथ दे सकता है। यह दुनिया इंसानों से भरी है, यहाँ सब अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। ना आप इनकी तकलीफ समझ सकते हैं, ना वो आपके गम आते हैं। तकाले आने हैं, लेकिन उनका मकसद बाकात तब पूरा होगा जब आप अपनी तवज्जो अल्लाह पाक से ही करते हैं। जब कभी तुम्हारा यकीन डगमगाने लगे और मायूसी की तरफ जाने लगो तो एक बार खुद से यह सवाल जरूर करना, क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को गुलजार किया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा निकाला? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के खजानों का मालिक बनाया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने मकड़ी के कमजोर तरीन जाल के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं की? क्या इस दुनिया में मौजूदात होना बंद हो गए या मेरे रब का इख्तियार कम हो गया? नहीं, मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है। मेरा रब वही है जो हजरत इब्राहीम, हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है, कुन फयाकुन हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटते हैं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों की ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए तो यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगा वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। ऐन मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। इलाही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है? बिन मांगे क्यों अता नहीं करता? जरा सोचिए, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर, तो आप अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते हैं? अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते? अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर। लेकिन याद रखिएगा, आजमाते उन्हीं को हैं जिन्हें आप अपने कुर्ब से नवाजना चाहते हैं। पता है इंसान कब बेसुकून होता है? जब वो अपनी सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं,
पहला यह है कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह है कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाओ। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दें। यह दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है कि यह धोखे का घर है। फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें। अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं, जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ। तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम अल्लाह पाक को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने देता। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोच कर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफी है। हर चीज आरजी है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। और एक बात, दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह पाक जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजिर होते हैं मौजूजों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह पाक जानता है तुम किस कुर्ब से गुजर रहे हो। वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को। वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह पाक से मिलाने आया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह पाक, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह पाक को चुन लेता है, अल्लाह पाक उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है, तो मोहब्बत वालों को अपनी रजा में राजी रहने के लिए, और सब्र करने वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजार कर पाक होने के लिए चुन लेता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब ने हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, याद रखें हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता। चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है, और जमीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। अल्लाह पाक से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। जिंदगी में हर परेशानी का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह पाक से बातें करें। अल्लाह पाक से
मांगे, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, अल्लाह पाक पर भरोसा करें, अल्लाह पाक से फिर कहें और कहते रहें। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह पाक से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आंखों की नमी अता कर दें। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आँख को पूनम कर दिया। जो दरवाजे अल्लाह पाक हमारे लिए खोल देता है, उन्हें चाह कर भी हमें कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह पाक की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके? कोई नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।